This conference will now be recorded. Hello and welcome everyone. Hope everything is going fine. कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया एकदम. कोरोना चलता जा रहा है. देखो विनोद भाई अपने है ना. विनोद भाई आपका मैसेज मैंने पढ़ा. गेट हेल्दी सोल. फटाफट एकदम वापस पहले जैसे हेल्दी हो जाओ. बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की तरह एकदम. और रैली करो. राइट. चलिए लेट अस बिगिन आवर मीटिंग. सो टुडेज आवर टॉपिक इज learning pattern. Right. You all have just start discovering charts. You learn support resistance. Right? You are trying to learn some trends. So it's just a beginning of chart. Till now, all those things which you have learned in fundamentals and all those things which you have learned in chart. Let me compound everything. I agree that still in chart chapter, there are several things to learn which we are going to learn in coming weeks. But till now, we have at least learned about support resistance, right? So let me first take everyone to the test which we have done, and test was for किसका टेस्ट किया था हमने, किससे शेयर पे टेस्ट किया था? ओके, यूबीएल पे किया था क्या? ओके, लेट मी चेक. So this was beverages sector, and as we have discussed during fundamentals, that brew sector is one of the fastest growing sector of India, and not only India. Generally, this sector is seen as one of the fastest growing sectors in developing countries. और वो कंट्री जो कंट्री ग्रोथ करती है, जो कंट्रीज के सिटीजन की इनकम बढ़ती होती है, मिलेनियल्स होते हैं, वहां पे ये सेक्टर को चल रहा है. राइट. और इंडिया में भी देखा हमने, चाइना में भी यही चीज देखी. राइट. So this is a growing sector. Now from this sector you search this UBL. Why? Because there is huge debt on McDowell. McDowell, which is known as United Spirit, is leader in this sector. सबसे बड़ा कंपनी है. लेकिन आपने मैकडोवल इसलिए पसंद नहीं किया because there was huge debts. Right. Here I will like to tell ये जिन्हों अशोक भाई ने बनाया है, what we should do. जो टॉप की 2-3 कंपनियां हैं, इन कंपनियों में आपने आईसीआर नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा कि नहीं अशोक भाई? राइट. काइंडली राइट डाउन आईसीआर इन योर शीट. मैंने आपकी शीट में से उठाया है, बराबर है. तो आईसीआर लिखोगे, आपको पता चलेगा वेयर यू कैन बी कंफर्टेबल. राइट. इफ यू थिंक यू कैन इवन नोट डाउन हियर डेप्थ, कि कितना डेप्थ है कंपनी पे, बराबर है, ताकि एकदम आइडिया क्लियर हो जाए कि भी मैं बाय करूं कि नहीं करूं. So considering net profit margin, considering debt paying capacity, and considering consistency, you selected UBL, right? UBL का पूरा हिसाब किताब आपके सामने है. You saw that UBL was just making turnover of 500 crore, today making turnover of 15,000 crore, making profit of 27 crore 15 years back. Today they are making profits of 400 crores. So huge growth in sales and profits, and that is the reason you saw company is having good consistency in making profit, and huge wealth has been created even here. Right. ये margin को एक decimal कर दूं मैं अशोक भाई? Okay, so now these are single decimal margin. यहाँ पे भी okay. Their reserves are increasing.
मेरे को एक कंपनी बताओ ऐसी जिनका रिजर्व कंटिन्यू घटता जा रहा है और कंपनी चलती जा रही है, कभी नहीं होगा, राइट? ऑल दिस लॉस मेकिंग कंपनीज व्हिच यू हैव अवॉइडेड, उनका उल्टा होता है ये चार्ट। रिजर्व पहले तगड़ा होता है, हर साल रिजर्व धीमे 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 यूटिलाइज, धीमे धीमे रिजर्व कम होता है, बुक वैल्यू कम होती है, एंड दैट इज द रीजन वो शेयर को मार पड़ती जाती है। हियर इन दिस केस यू सॉ दैट रिजर्व हैव इंक्रीज्ड। बुक वैल्यू कैसे बनता है? नंबर ऑफ शेयर डिवाइड बाय दिस रिजर्व। अब मेरे को आप बताओ, बुक वैल्यू इनका 2004 में जो था उससे ज्यादा होगा कि कम होगा? अभी नो डाउट अबाउट इट, ज्यादा ही होगा, राइट? एंड दैट इज द रीजन इनका यहाँ पे जो भाव था वो भाव से ज्यादा भाव है। अब आने वाले 15 साल का सोचो, क्या यूबीएल का बुक वैल्यू घटने वाला है कि बढ़ने वाला है, राइट? This is a question for you. If company is growing, we can expect that this company could reach 25,000 crore turnover. अब इसका चार्ट देखें. This is the chart of UBL. You can see that during 2008 there was huge volatility. 2008 की मंदी में इसको मार पड़ी थी. Huge rally was seen from 2002 to 2008. 2008 में बराबर गिरा है, यानी ये चीज याद रखने की, जब जब बाजार में मंदी आती है, लो मार्जिन वाली जो कंपनियां होती है जस्ट लाइक यूबीएल को प्रेशर रहने वाला है, बट दिस इज अ गुड कंपनी। एज यू नो, कंपनी वाज एबल टू मेक हायर हाई सेल्स, हायर हाई प्रॉफिट। इसी वजह से कंपनी ने अगेन ब्रेकआउट दिया 2010 में। देखो याद करो, निफ्टी गेव ब्रेकआउट इन 2014, 2008 के लेवल 2014 में निफ्टी ने कूदा है, और यूबीएल 2011 में ही इसने ब्रेकआउट दे दिया। क्यों? क्योंकि निफ्टी की कंपनियां धंधा नहीं बढ़ा था, मंदी की लपेट में थी, 6 साल तक प्रॉफिट्स नहीं बढ़ रहे थे, और यूबीएल के प्रॉफिट बढ़ रहे थे, जिसकी इफेक्ट भाव पे आई। तो भाव के पीछे मत भागो, सेल्स प्रॉफिट को देखते जाओ, भाव आपके पीछे आने ही वाले हैं। जस्ट एक्सक्यूज मी, right friends? So hope now you are able to see why your companies are rallying and why some companies are not rallying despite कितना साल हो गया, 10 साल होने को आया, अभी भी वो सब कंपनियां मंदी की लपेट में है, जिनके प्रॉफिट 2008 से कम है। किसके कम हो गए ये बताने का जरूर नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है। Just let me adjust this charting. चिंतन भाई, यस, यस पीयूष भाई। या इशू इन कनेक्टिविटी, हाँ यस पीयूष भाई, आपका आवाज बंद हो गया था। इलेक्ट्रिक कनेक्ट, या इलेक्ट्रिसिटी। So just let me adjust it so that our meeting can complete. या Okay. Yes, Chintan bhai. So now everything is fine. ओके पीयूष भाई, कंटिन्यू। So this is what we were discussing, that the companies which are able to grow their sales and profit, you see the rally in their share.
But where depth, there is depth, where margins are shrink, you will see corrections also. You will see it's a natural phenomenon in any particular share. आपने कोई भी शेयर लिया हो, every share, हर एक शेयर में ये आराम मोड आता ही है. There is no share in this world which never ever continue rally. हर एक शेयर में कभी ना कभी आराम मोड आता है. So this was something about UBL. अभी वो आराम लॉन्ग टर्म हमको क्या एक्सरसाइज करना था. देखो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना कि लॉन्ग टर्म क्या ट्रेंड है, तो लॉन्ग टर्म दिस शेयर इज इन रैली ट्रेंड. शॉर्ट टर्म दिस शेयर इज इन रेंज बाउंड मूव. अभी ये शेयर जो है ये 800 से 1500 की रेंज में घूमता जा रहा है. सो वी कैन एक्यूमुलेट इट एट लोअर लेवल, राइट. एंड इट्स कोई जरूरी नहीं है आप इधर प्रॉफिट बुक करो आज, नहीं तो कल ये लेवल ब्रेक करने ही वाला है, जैसे 2008 में किया था, राइट. सो डोंट थिंक अबाउट प्रॉफिट बुकिंग. यस, वी कैन एक्यूमुलेट इट एट लोअर प्राइस. गॉट इट. चलिए, इसी प्रकार से अब आप लोगों ने जो भी होमवर्क किया है, राइट, ऑल योर होमवर्क वी आर गोइंग टू चेक. सो लेट मी स्टार्ट with Ashok Bhai Sunagra. Ashok Bhai, are you online right now? What we will do, Hello, sir. we will give yes, Ashok Bhai, we will give 5 minute opportunity to and everyone, and they will present their sector. जैसे मैंने अभी रिलैक्सो प्रेजेंट किया, सॉरी UBL प्रेजेंट किया ना, वैसे ही जी सर. आपने जो सेक्टर का चार्ट डाला है और सेल्स और प्रॉफिट डाला है, आपको उसको इसी प्रकार से प्रेजेंट करना है कि चार्ट और फंडामेंटल ये दोनों साथ में चलते हैं कि नहीं चलते हैं. बराबर अशोक भाई? हाँ जी सर. चलिए, कौन से सेक्टर में काम किया आपने बताइए, किधर चलेंगे अपने? एयरलाइंस में, फार्मा में. एयरलाइंस. ओके, बढ़िया. चलिए, बढ़िया काम किया है आपने अशोक भाई. हाँ जी. आवाज आ रही है सर? क्या समझाना चाहोगे? आ रही है, एकदम क्लियर आवाज अशोक भाई आपकी, राइट. अच्छा, आप क्या समझाना चाहोगे यहाँ पे अशोक भाई? जी सर, मैंने वो एयरलाइंस में लिया है. एयरलाइंस के अंदर मैंने वो देखा कि सबसे अभी अब इस टाइम तो एयरलाइंस में इतना कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन सभी एयरलाइंस के अंदर जो मैंने देखा सेल्स के बारे में और रिटर्न ऑन इक्विटी और नेट प्रॉफिट मार्जिन में, तो सबसे बढ़िया इंडिगो लग रहा है इसमें. बराबर है, राइट. इस सेक्टर के अंदर. लेकिन इस वक्त कोरोना की वजह से, इस वक्त कोरोना की वजह से उसका जो सेल्स है इस वक्त वो डाउन, प्रॉफिट और सेल्स तो बढ़िया आ रहा है लेकिन प्रॉफिट डाउन आ रहा है. आप थोड़ा ऊपर कीजिए सर. ओके, मतलब नीचे कीजिए. ओके, अच्छा. नहीं, अच्छा नीचे नहीं, पूरा हिस्ट्री देखनी है नीचे. ओके, अच्छा. हाँ, तो हम देखते हैं सर कि उसका सेल्स है कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आ रहा है थोड़ा. तो इसकी वजह से उसके जो प्राइस है उसमें अप एंड डाउन देख रहे हैं. हम चार्ट में भी उसको शो कर रहे हैं. हम देखते हैं कि कभी ऊपर जाता है, रेंज बाउंड में रहता है अभी, लेकिन उसका जो सेल्स है कंटिन्यूअसली ग्रो ही कर रहा है. राइट. चार्ट में अशोक भाई, एक साल ऐसा नहीं है जब इनका धंधा डाउन हुआ है ना? हाँ, सेल्स में कोई ऐसा नहीं है जब धंधा डाउन हुआ है. हाँ, लेकिन प्रॉफिट में ऊपर धंधा 10 साल में. बराबर है, इसीलिए इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं एयरलाइन को. लेकिन प्रॉफिट में जबरदस्त उल्टा चढ़ाव है. एक साल प्रॉफिट आएगा, फिर वापस प्रॉफिट गिर जाता है ना? हाँ जी सर. इसकी वजह से क्या कह रहे हो आप? तो उसकी वजह से जब ये अभी ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है सर, एयरलाइंस इंडस्ट्री. जब ये कोरोना का दर जाएगा तो ये बिल्कुल वो नया हाई पे ये ट्रेड करेगा, मुझे विश्वास है सर, क्योंकि इसका सेल्स तो बढ़िया ही आ रहा है. लेकिन सर अभी क्या हो रहा है, जो अब तक क्या होता है कि वो उसको फ्यूल का प्राइस और
फॉरेन करेंसी की वजह से उसके जो प्रॉफिट में अप डाउन हो रहा था। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले रही है लोकल एयरलाइंस में और इंटरनेशनल एयरलाइंस में, जो नए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, नए नए ट्रैवलिंग के जो फास्ट गोइंग हो, जैसे कि बुलेट ट्रेन है, इसी तरह की सबको ट्रैवलिंग की ज्यादा जरूरत रहेगी। तो जब ये कोरोना से जब एग्जिट हो गए तो उसका सेल्स तो बढ़िया ही है, लेकिन प्रॉफिट में भी उसको थोड़ा मार्जिन मिलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बराबर है। तो एक चीज तय है कि यहाँ पे हमें डिमांड तो मिलने वाली है, डिमांड बढ़ जाए, है कि नहीं? जी सर, डिमांड और बढ़िया है। डिमांड की वजह से ही चलो प्रॉफिट गड़बड़ी है, और डिमांड की वजह से ये रेंज बाउंड घूम रहा है। अगर जी कोई सर। ऐसी कंपनी होती ना अशोक भाई, जिसका धंधा हाँ भी नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट तो हमको हाँ पता है ये नहीं बढ़ रहा है, और हाँ धंधा भी नहीं बढ़ता, तो ये कंपनी रेंज बाउंड नहीं होती। ये कंपनी तो कैसी डाउन होती ट्रेंड पता है? वो डीएलएफ की तरह, ऊपर से जी सर। नीचे जी सर। लोअर ट्रेंड। पर ये शेयर लोअर ट्रेंड नहीं है, ये शेयर क्या जी है? सर, रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड, बराबर है। लेकिन उसकी वजह है उसका प्रॉफिट। करेक्ट करेक्ट, धंधा नहीं, प्रॉफिट। बराबर ना, हाँ, धंधा तो लेकिन आ ही जैसे रहा है, ही उसका, राइट? जैसे सर अभी 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 गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है, जो गवर्नमेंट कुछ कर रही है एयरलाइंस इंडस्ट्री के लिए, उसमें अगर वो ट्रैफिक बढ़ेगा और तो उसका प्रॉफिट भी जरूर बढ़ेगा सर। बराबर है। अशोक भाई, आपका चार्ट देख के मेरे को बताओ ना कि अगर मेरे को लेना है जी सर। तो मेरे को कहाँ लेना चाहिए इंडिगो को? क्या मैं इसको 1800 1900 जैसा आए तब लूं, कि कब खरीदूं? सर अगर मुझे लगता है कि हमें ऊपर पे नहीं लेना है, नीचे में लेना है। शेषक की बराबर है, सर क्या है राइट। कि नीचे में 70 लेना है और एक्यूमुलेट करना है सर। 78% इसको सर अशोक एक भाई। साथ नहीं लेना है, हाँ एक साथ नहीं लेना है, हाँ, एसआईपी की तरह लेना है। गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। पर ये 800 के क्योंकि करीब सर हम वो इसको जो अप ले डाउन हो सकते रहा हैं, है, बराबर कि नहीं? हाँ हाँ, ये जो रेंज है अच्छा, हमें, तो मैंने नीचे दो लाइन खींची है, उसके बीच में बराबर है, हम अपनी एसआईपी करेंगे। करेक्ट, राइट। तो फिर कितना सिंपल है ये चार्ट। 800 के करीब आए तब लो। देखो अभी कोरोना के समय 800 पे ही आ गया था। ये जी हर सर। बार 800 के करीब आके बाउंस होता है, राइट? जी सर। बाउंस हाँ लिमिटेड है, और 800 के जी सर। करीब आए तो चलो इसको ले सकते हैं तब अपने, राइट? पर इसको बड़ी क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी के बढ़ रहे, हाईवे क्लियर नहीं है। तो एक आधा जी टका सर। हम लोग इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बराबर ना? जी सर। क्या, गुड गुड, बढ़िया काम किया आपने, बहुत अच्छे। सर अभी धन्यवाद अशोक ये भाई। मैं पूरा काम नहीं कर बोलो। सका हूँ, क्योंकि मैं सबसे हाँ, पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी 122 इंडस्ट्रीज, वो पूरी की मैंने अपने हाँ, हिसाब से, अरे पूरी के वाह, पूरी उसमें। 122 इंडस्ट्री पूरी कर दी आपने। हाँ, 122 इंडस्ट्री को तारीफ, कंप्लीट किया मैंने कल। क्या तो सर बात मुझे वो है, शेयर ताली करना है होनी तो चाहिए कैसे आपके करूँ? लिए। वो सीट शेयर करना है तो कैसे करूँ अशोक, सर यहाँ पे सबको? हाँ देखो क्या करो, दो तरीके शेयर करने के। एक तो उसको डाउनलोड कर दो, एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर लो उसको, और एक्सेल नहीं शीट सर, आप ग्रुप में अच्छा डाल दो। एक्सेल सीट में, हाँ, पर एक्सेल, और दूसरा नहीं अगर सर, आप मैं उसको क्या चाहता हूँ शेयर करना है, जैसे अपन ने ये शेयर किया हुआ है, ये अपन ने शेयरिंग किया है ना, हाँ राइट? तो क्या करने का, देखो ये जगह दिख रही है आपको, ये शेयर वाली, जी जी, हाँ 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 हाँ, इसको शेयर बटन दबाओ। ओके अब ये शेयर खुल गया, राइट? ओके। ये कॉपी करके दे दो, राइट? ये जो स्प्रेडशीट है ना, यहाँ पे लिखा ओके हुआ है एनीवन ऑन द इंटरनेट विद दिस लिंक कैन एडिट। मतलब मैंने ओके, जो लिंक बनाई है, मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इसलिए मैंने यहाँ जी पे सर, आपको परमिशन दी है कि आप इसको एडिट कर सकते हो। आपको ये चेंज ओके, कर देने की, आपको ऐसा अच्छा, करने का कि खाली लोग व्यू कर सके, एडिट कोई नहीं कर सके। ओके ओके। ठीक, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी मैंने जो सर आपने क्या काम किया। किया उसमें सर मैंने फ्रंट पेज में सभी हाँ, इंडस्ट्रीज जो बनाई है उसमें लेकर कितनी लिस्टेड है, उसमें से 80% में कितनी आती है, और सबका मैंने फ्रंट पेज के अंदर जो राइट, मतलब 2 3 4 5 आती है, सब में उसमें लिख कर बनाई है सीट। तो जब फ्रंट सीट से हमें इंडस्ट्रीज का पता चल जाता है। बराबर, बहुत अच्छे अशोक भाई, यही चीज तो हमें चाहिए। हमें, हाँ हम जी जो सर। पूरा जो अपना जो काम को अगर इकट्ठा करेंगे, तो हमें पहली नजर में पता चलना चाहिए
इंडस्ट्री कौन सी ग्रो कर रही है, इंडस्ट्री कौन सी डी ग्रो कर रही है। डी ग्रो को सर। देखना नहीं है, तो ये growing मीटिंग खत्म होने के देखना है, बाद मैं शेयर कर देता हूँ सर। कर रही है जी या सर। आप करो, कल शेयर करो, उसको थोड़ा अपन चेक करते हैं, बराबर है हाँ जी अशोक सर, भाई? बिल्कुल। ये जो मैंने तरीका हाँ। बताया ना वैसे ही शेयर करो आप, राइट। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल सर। बढ़िया बढ़िया अशोक भाई, वंडरफुल, बहुत अच्छा काम किया आपने, राइट। हाँ सर, मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो आपने पहली और दूसरी वाली जो एक्सरसाइज, अब मैं दूसरी वाली सभी इंडस्ट्रीज में करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जो ये पहली हाँ। एक्सरसाइज की ना, उसमें मुझे बहुत कुछ जानना मिला कि कौन सी वाली जो हमें जो लेसन मिलते हैं वो तो 2-3 इंडस्ट्रीज ही मिलती थी, लेकिन उसको अभी मैंने पूरे के पूरी 122 का बारे में मुझे मालूम हुआ कि कौन सी इंडस्ट्रीज में क्या है, उसका ग्रोथ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका मुझे एनुअल रिपोर्ट देखने को मिला, उसमें से कुछ चीजें मुझे जो नहीं जानना था वो समझ में आ गई। बराबर है, बिल्कुल सही है अशोक भाई। देखो एकदम सिंपल है शेयर बाजार, अपने जैसे अपने बड़े कहते हैं कि भी अच्छी सेहत के लिए चलो अच्छा खाना खाओ, अच्छा थोड़ी एक्सरसाइज करो, तो सिंपल सिंपल बातें हैं। यही सिंपल चीजों को हम चाहे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं, हजारों इनकी ट्रेनिंग खोल दो, बराबर है, कितने डाइटरी प्लान बना लो, पर सबसे सिंपल क्या है, अच्छा पौष्टिक खाना खाए, थोड़ी एक्सरसाइज उसमें सर कुछ क्वेरी है, लेकिन वो अभी यहाँ पर उस सीट में थोड़ी क्वेरी है, लेकिन यहाँ पर नहीं डिस्कस करके टाइम नहीं वेस्ट करूंगा सब लोगों का, लेकिन बाद में कुछ पर्सनली पूछ लूंगा, ठीक है सर? कोई बात नहीं। आपकी जो क्वेरी है ना, ये क्वेरी जैसे ही आप अलग अलग पे काम करोगे ना, बहुत सी क्वेरी आएगी, लेकिन धीमे धीमे वो क्वेरी निकल जाएगी, बराबर कि नहीं? इतना है कि आपको इतना डीप ज्ञान हो जाएगा कि आपको हर सेक्टर के बारे में पता होगा, हर सेक्टर की नेगेटिव पॉइंट पता होंगे आपको, बराबर। नेगेटिव पॉइंट यानी क्या हो तो वो सेक्टर टूट सकता है, वो सेक्टर की बड़ी कंपनियां, तो मजा आएगी। बढ़िया, इस काम को करो और हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे बाद में, बराबर अशोक भाई? जी सर, वेरी वेरी गुड, धन्यवाद आपका। नेक्स्ट वी विल, जिसमें फार्मा लिया है मैंने अशोक भाई के पास एक होटल, हिरेन भाई ने काम किया है फार्मा में। किस पे? फार्मा किसने किया है? फार्मा में काम मैंने सर। ओके, फार्मा में भी मैंने किया है। फार्मा किधर है? नीचे फार्मा क्यों नहीं दिखा मेरे को यहाँ? हाँ ओके, इधर। अच्छा, अरे ये सब पे किया है क्या, ये जो नीचे लिखा है? बढ़िया, समझाओ तो इधर अशोक भाई, क्या काम किया आपने इसमें? सर उसमें मैंने डीवीज को पसंद किया है। ओके, राइट, उसको क्यों पसंद किया सर? सेक्टर आ गया। जी सर, राइट, उसमें इसलिए पसंद किया कि सर उसका सेल्स कम है, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है। इसका आईसीआर सबसे बढ़िया है। ओके, तो इसकी वजह से मैंने उसको सिलेक्ट किया। बढ़िया, ओके, गुड, बढ़िया काम किया आपने। उसका कंसिस्टेंसी सर सेल्स है वो बढ़ता ही गया है। नीचे आप जाके देखिए, थोड़ा नीचे। ओके, कभी भी नहीं घटा आज तक, क्या बात है। कंसिस्टेंस, बराबर, इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। और प्रॉफिट कितनी बार गिरा है? एक ही बार, 2 बार कम हुआ है। हाँ 2 बार है ना? हाँ जी सर, 2 बार कम हुआ है। पर लॉस कितनी बार किया है ये कंपनी ने? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। तो यही तो बात है अशोक भाई। हम लोग ऐसी कंपनियां ले लेते हैं कि जो कंपनी 10 साल में से 4 बार लॉस करती है, और फिर उसमें वॉलेटिलिटी बहुत आती है, तब हम घबरा जाते हैं। हम स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में रहे, स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, पर इतना सोचे कि अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट में प्रॉब्लम आए तो बाकियों के हाल तो तब क्या होंगे, बराबर की नहीं? अभी सर आप चार्ट बढ़िया में रहे। हाँ जी, समझाइए कहाँ है चार्ट? इसका ऊपर है। ओके, चार्ट सबसे ऊपर है। हाँ, ये आ गया चार्ट। हाँ सर, मुझे ये जानना था, यहाँ पर जो ये 2016 में वो क्यों नीचे गिरा? क्योंकि उसके सेल्स में तो कुछ
इतना चेंजेस नहीं है। और 18 में जो ब्रेकआउट बराबर। आया वो तो मुझे मालूम हो गया कि उसका सेल्स और प्रॉफिट बढ़कर आया था, लेकिन यहाँ से ये क्यों गिरा ये तो बराबर। मुझे नहीं मालूम हुआ। क्या सेक्टर की यही वजह से बहुत कि बड़ी पूरे सेक्टर लर्निंग है। और ये कितना गिरा था हाँ, अशोक भाई, पता है आपको? ये आधा हो गया था, हाँ दिख रहा है आपको? नहीं आधा नहीं हुआ था। देखो 1400 से 500, तो मतलब आधा नहीं, आधे से भी ज्यादा है कि जी नहीं? सर। आपके सामने ये चार्ट, हाँ, हाँ 1400 सर। वाला शेयर अगर 500 आ गया, मतलब ये एग्जैक्ट कितना गिरा था बताओ आपको? ये आपको आगे लर्निंग में आएगा। अभी हाँ, 61.8% टूटा था ये शेयर एग्जैक्ट। तो सर ये क्यों उसके सर वो उसमें तो मुझे कुछ इतना गिरा हुआ नहीं दिखा सेल्स में प्रॉफिट में, फिर भी वो प्राइस में क्यों गिरा ये मुझे नहीं समझ में आया सर। यही सीखना है सुबह, यही सीखना है हमें कि जब शेयर ओके सर। ऐसी कंपनियां होती है ना, जब उनके धंधे 20-20% से बढ़ रहे होते हैं, प्रॉफिट 20-20% से बढ़ रहे होते हैं, अगर उनके जी सर। धंधे 20 के बदले 5% बढ़े, ऐसा भी होता है ना जब, तभी भी जी सर। गिरावट आती है। क्योंकि आप ओके। एस्टिमेट क्या कर रहे थे, धंधा तो 15% से बढ़ेगा, 20% से बढ़ेगा, और बढ़ा कितना? खाली 5%। इसे हम क्या कहते हैं? ओके। लोअर देन एस्टिमेट। समझे? ओके। अभी आपको क्या हाँ दिख रहा है कि हर साल धंधे बढ़े, पर जब आप हाँ हाँ सही में उसको लेके रखे होते हो, तब आप देख रहे होते हो, आपका अनुमान होता है कि आपकी कंपनी के धंधे इस बार 20% से बढ़ेंगे, तो वो हायर पी पे होती है, महंगी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि ओके। हमें उम्मीद है कि धंधे अच्छे आएंगे, प्रॉफिट अच्छा आएगा। लेकिन अचानक, आपको अगर याद हो तो 2015 से पूरे फार्मा इंडस्ट्री में मंदी आ गई थी। जी जी सर। 2015 में सन फार्मा आधे से आधा हुआ, लुपिन आधे से आधा हाँ हुआ, और वो दोनों जी सर। शेयर अभी तक पे नहीं आए। डॉक्टर रेड्डी हम्म। आधे से आधा हुआ, डॉक्टर रेड्डी अभी वो 2015 वाले भाव पे आया है। तो बुरे हाल थे जी सर। फार्मा इंडस्ट्री के, तो ये भी टूटा था। हाँ सर। तो हाँ इंडस्ट्री टूटी तो लोगों को डर लगता है कि यार सब कंपनी की हालत टाइट है, मेरा डिविस का भी धंधा गिरेगा, डर लगता है ना? ओके। तो ये ऐसी इफेक्ट आती है। ओके इसीलिए सर। घबराने का नहीं, आधा यानी नॉर्मल चीज है, ये सब होता जाएगा। जी देखो बिल्कुल मैं सर। इसका आपका यही सेल्स देखो, 2016 2015 वाला, 2016, ये देखो दिख रहा है आपको इनका धंधा हाँ मैंने इसीलिए वहाँ मार्क किया थोड़ा था बड़ा कि था, यार 3700 हाँ करोड़ का। हाँ हाँ। हाँ, और प्रॉफिट कितना हुआ था? 1100 का 1000 करोड़। देखो यहाँ आपको लाल कलर करना था, जी सर। कर देता हूं मैं। यानी देखो यहाँ पे प्रॉफिट इनका सर डाउन हुआ था, ये सीट हुआ मैंने था ना मैंने 2017। विनोद जी की ली है सर, ये मेरी सीट नहीं है, मैंने विनोद जी की सीट को लिया है यहाँ से, ये वाली। अच्छा, वो रह गया होगा लगता है उनसे, उन्होंने उनको यहाँ कलर करने हाँ जैसा था, पर विनोद भाई भूल गए लगता है। हाँ बराबर जी कि नहीं? सर। पर अगर ये यहाँ पे नीचे लाल वाली कलर सीट। किया होता है तो अपने को पता चलता है कि जी सर। प्रॉफिट खाली गिरने से शेयर आधा हो जाता है, जी सर। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री खराब थी। तो ये चीज याद रखने की, ये सब 2 साल चीजें 2 साल लर्निंग पूरी। है। हाँ। आने वाले समय में यही सब काम लगेगी। बराबर है? जी सर। हाँ हाँ सर। ध्यान अशोक भाई। जी सर। ओके ओके। तो आप लोगों को, ओके सर। आप में से जो भी लोगों ने और होटल इसी होमवर्क पे कोई भी चार्ट डाले हुए हैं, मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, और कोई कंपनी आपने किया हुआ हो तो वी कैन होटल में सर, चेक योर कंपनीज। इंडियन होटल डाला है होटल। मैंने अभी। होटल होटल। ओके ओके अशोक भाई, लेकिन मेरे को दूसरों से पूछने दो, अगर ऐसा नहीं ना नहीं हो कोई कि बात हम नहीं दो सर, बात करते रह जाए ये और तो बाकी आपने किसी का पूछा होमवर्क इसलिए मैं रह बोल जाए। रहा हूँ। बराबर। सबको सबको सबका होना तो चाहिए सर, मेरा मैं भी चाहता आपसे, हाँ बराबर है। हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं तो सही। आप में से जो सब किसी का कोई भी होमवर्क हो, यू कैन आस्क, वी विल ओपन योर स्प्रेडशीट। बराबर है? नहीं तो अशोक भाई ने जो काम किया हुआ है होटल तो हम देख ही लेते, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पूछना ये मेरा फर्ज है। चलिए होटल इंडस्ट्री में ओपन कर लेता हूँ अशोक भाई। होटल किधर है? चलो कंट्रोल F। सर मैंने किया है तो एफएल होटल में, नहीं अनिल मिली। पाल बोल रहा अनिल भाई, अच्छा एफएल में किया हूँ। गुड हुआ है, इवनिंग सर। मतलब अपना एडवर्टाइजिंग। यस सर। चलिए अनिल भाई,
सबसे ऊपर है सर। अच्छा इधर नाम नहीं लिखा है, ऐसा है ना? एक मिनट, चलो मैं लिख सबसे देता ऊपर हूँ। है, एडवर्टाइजिंग है ना ये? सबसे ऊपर है सर, 3rd नंबर पे। एडवर्टाइजिंग एंड मीडिया, इधर मैं आपका नाम लिख देता हूँ, अनिल पाल। ओके, चलिए। इनवैलिड अच्छा, क्यों बता रहा है सर ये? रेंज क्यों इनवैलिड बता रहा है? हाँ चलो देख लेते हैं इसको। कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देख लेते हैं। ये है एडवर्टाइजिंग शीट्स इन द स्प्रेडशीट। सीधे चले जाइए सर, सीधे। यहाँ पे कहाँ पे है? सीधे चले जाइए सेक्टर में। अनिल भाई, spreadsheet में सेक्टर में सीधे चले जाइए सर, नीचे शीट जो है। आपका काम है, देख लेते हैं आपका काम किया हुआ। अच्छा ये रहा ना, है ना? चलो और एक बार अपने इसको ट्राई कर लेते हैं। ओके अनिल भाई, आप लैपटॉप पे हो कि यस सर, मोबाइल पे हो? लैपटॉप। लैपटॉप में आपको प्रेजेंटेशन बना दो, ताकि आप अपने प्रकार से प्रेजेंट कर सको। कि प्रॉब्लम आएगा? सर अभी आप ही बताइए, थोड़ा सा नया। ट्राई करो, चलो अभी मैं यही बताता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है ओके। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, यस मेरे में लिख के आ गया चिंतन भाई कि टर्न ऑफ योर वेबकैम, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, मैंने बंद कर दिया, है ना? ओके ओके चलिए, यस अनिल भाई, यू कैन स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। क्या सीखने को मिला फंडामेंटल और टेक्निकल को जब आपने जोड़ा, बताइए सर। फंडामेंटल और टेक्निकल को जोड़ के तो यही पता लगा सर कि ये जो शेयर है, ये अभी ग्रोइंग इंडस्ट्री का शेयर है। और इसका रेंज पकड़ने में भी मेरे को दिक्कत हुआ। मैंने नीचे चार्ट में मार्क तो किया हुआ है, मगर इसका जो शेयर का रेट ओके है वो बहुत ऊपर गया हुआ है। तो ये समझ नहीं आ रहा कि इसका बाइंग लेवल एक्चुअल में क्या बनेगा जाके, क्योंकि मंथली में भी इसका ठीक से मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि चार्ट बहुत छोटा था। तो मैंने वीकली में पकड़ा हुआ है इसको। बराबर, ये अभी अ, पैदा हुआ है ना? ये तो हाँ अभी जी, इसका जन्म हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ जी। तो तो आपने ये चार्ट डेली तो चार्ट लिखा हुआ है या फिर नहीं, ये वीकली चार्ट है सर, वीकली। वीकली लिया है? कोई बात हाँ नहीं, जी, ओके। हाँ जी। देखो एक चीज तो क्लियर है अनिल भाई, ये चार्ट देख के मुझे इतना पता चल रहा है कि ये जो शेयर है, ये यहां से चल के 2200 गया, टूट के वापस आईपीओ के भाव पे आ गया, आया ना? यस सर, यस सर। वापस रैली हुआ। तो कोरोना की वजह से ऐसा लगता था कि एफएल रेंज में चलेगा। कौन सी? 1000 से 2000 की रेंज में चलेगा। रेंज यस बाउंड सर। मोड शेयर रहने वाला था, लेकिन ये हफ्ते कुछ कमाल हुआ और शेयर ने ब्रेकआउट दिया और आपका यस शेयर सर। यहां से छलांग मार के ऊपर चला गया। तो ये रेंज यस। तोड़ के निकल गया है। ये रेंज क्यों टूटी है, इसका जवाब आपको कहां से मिल सकता है? इसकी जो Q1 का जो रिजल्ट आया उससे पता लग रहा है। 100% अनिल भाई, ये शेयर को रेंज में रहना था, ये इसकी फितरत थी। पर यस फिर सर। भी ये शेयर रेंज में नहीं रहा और इस शेयर को लाइफ टाइम हाई लगाना है। कोरोना के समय पे कंपनियां लाइफ टाइम हाई नहीं लगा रही, राइट? यस सर। पर फिर भी ये लगा रही है, तो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ कहानी होगी। तो क्वार्टरली यस सर। रिजल्ट इसके करूं में डाले हुए हैं अपने क्वार्टरली रिजल्ट। एक मिनट, क्वार्टर की कहाँ पे है? नहीं, क्वार्टर की रिजल्ट एक्चुअली शीट्स दोनों दूसरे की उठा रखी है, वहां पे नहीं लिखा हुआ था। ओके, उन्होंने नहीं डाले हुए थे तो क्वार्टरली हाँ जी, हाँ रिजल्ट जी। है ना? ओके राइट। तो फिर हमें यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ, ये पिछले साल का है। लेकिन हाँ जी। क्वार्टरली रिजल्ट, एक मिनट दो मेरे को। अब ये शेयर ने अगर ब्रेकआउट दिया है तो जानना जरूरी है कि ये शेयर क्यों ब्रेकआउट दे रहा है। चेक कर ले अपन यस सर। रिजल्ट में।
यस सर। ये है इनके। अच्छा, जून के तो आएंगे नहीं क्योंकि तब तो आईपीओ भी नहीं था, तो क्वार्टर अनाउंसमेंट में जाना पड़ेगा। क्या लिखूं अभी मैं यहाँ पे? रिजल्ट। हाँ जी। और ये रहा रिजल्ट 8 अगस्त को। मतलब 8 अगस्त में कुछ घटना घटी थी जिसके कारण ये शेयर जबरदस्त चलने लगा। ये स्टैंड अलोन है, तो हम जाते हैं कंसोलिडेटेड में। ये आ गए हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट में। आपको दिखे इसलिए मैं बड़ा करता हूं। हाँ सर, कंफर्टेबल है, ठीक है। अनिल भाई, यस सर। 82% कंपनियां, कितनी? 82% मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां लॉकडाउन में इफेक्ट में है और राइट सर। उनके धंधे अच्छे नहीं आए। हाँ जी। इस कंपनी के क्या हाल है बताओगे मेरे को? क्वार्टर 1 के रिजल्ट। क्वार्टर 1 के रिजल्ट इसका सर 784 से सेल जंप होके 922 हो गई। तो मतलब ग्रोथ आया कि डी ग्रोथ आया? जबरदस्त ग्रोथ है सर। जबरदस्त। हम ये कंसीडर करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हाँ जी, ऊपर वाला अच्छा। 890 और 746 कितना है चेक हाँ कर जी। लेना। चलो चलो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आप ही की शीट में। यहाँ पे हम यूं ही लिख देते हैं क्वार्टर 1, बराबर है। क्वार्टर 1 करंट ईयर, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रोथ। मैं कुछ इस प्रकार से रखता हूँ, राइट। तो सब हम लिखेंगे, हमेशा सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। याद है आपको कितना था? लिख लेते हैं। 740 कुछ था। 88 और 746, 898 अनिल भाई। हाँ जी, राइट सर। हाँ 746 लिखा। हाँ जी, ये 20% का। मैंने ग्रोथ डाल दिया फॉर्मूला। अब परसेंटेज ग्रोथ अनिल भाई 20%। तो 20% तो कमाल हो गया। किसी हाँ का जी। धंधा बढ़ा नहीं है। मुश्किल से आपको 100 में से 5 कंपनियां मिलेगी जिनके धंधे बढ़े। यस सर। और एप्पल ने 20% ग्रोथ दिखा के ये बोल दिया आपको कि पूरा साल वेट करो, मेरा धंधा 30% से बढ़ेगा, है कि यस नहीं? सर। क्योंकि सबसे खराब क्वार्टर था। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट डाल देता हूँ। लिख दे प्रॉफिट की भी फिगर अब। चलो यस आप सर। बताना मेरे को प्रॉफिट किधर है, कौन सा ले हम? ये ले प्रॉफिट आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम की आफ्टर टोटल टैक्स। टैक्स की नेट प्रॉफिट? नेट क्या लेंगे? प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। करेक्ट सर। कितना है? नेट प्रॉफिट है आपका 188, 187। बराबर। या और 0.71 है तो मैं 188 ले लेता हूँ, बराबर है। 188, यस सर। या 188 और 132। 132। यस 188, 132। अब देखो फॉर्मूला तो डाली हुई है अपन ने। ओ माय गॉड, कितना 42 आया प्रॉफिट बढ़ के? 42%। 42% प्रॉफिट बढ़ा है। तो मतलब इस साल आप देखो ये कमाल करने वाला है एप्पल। जो लोग बोलेंगे कुछ शेयर ऐसे चल रहे हैं कि हाथ में नहीं आते, हर शेयर यस सर। टूटेंगे, वो गलत पड़ेंगे। हर शेयर नहीं टूटेंगे। जिनके धंधे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो यस सर। यहाँ 2021 में सेल्स कितना एस्टिमेट करेंगे हम? आपने कितना किया हुआ है? 34%, राइट। चलो यहाँ पे हम यस ऐसा सर। करते हैं 30% एस्टिमेट लेके चलते हैं। ले लो 30%, ठीक। बराबर है ना? यस सर। राइट। 30%, 1 F33 और 0। ये शीट कॉपी करने में सर ये फिगर सब चली गई, और आज ही किया मैंने ये काम। अच्छा ऐसे ये आनी चाहिए हाँ। थी। ऐसे कॉपी करने में हाँ। हाथ हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हुआ हाँ सर, लगता है। आपकी कॉपी सब सही हो जाते हैं, हमारे से गड़बड़ हो जाते हैं।
ऐसा नहीं नहीं, वो प्रैक्टिस हो गई है ना। एक्चुअली आज ही किया है सर काम ना, तो एवरीथिंग। अच्छा, ऑफिस की वजह से कहीं बाहर था मैं, तो नहीं कर होगा पाया होगा, मैं सब धीमे धीमे काम। सब चीज आ जाएगी। हाँ, मगर ये वाली अच्छा, एक्सरसाइज सर बहुत ही चलो ये अच्छा वाले लगा ये हमें, वाला। हाँ, प्रॉफिट आपका कितना लेना चाहिए? 40% से तो अभी बढ़ा है, 50% ले सकते हैं क्या आपने? आ, ये जो चल रहा है सर, इसी को लेना चाहिए 30-35% तक। ओके, यहाँ पे ये सब गड़बड़ है। चलो मैं कर देता हूँ ठीक इसको। ओके, क्या लेना चाहिए? ये आ, अगर लोगे तो भी कोई बात नहीं, इतना सही है कि 42% का ग्रोथ अगर आपको मिलता है। इस बार हाँ ईपीएस 13 है। चलो गोला हाँ, मेथड से तो बता दो मेरे को, 13 का ईपीएस, 40% प्रॉफिट ऐड करेंगे तो कितना ईपीएस आएगा इस साल? 17-18 के आसपास। बराबर, 13 में और 6 ऐड करो, मतलब 18-19 का ईपीएस आने वाला है। अब कुछ यस सर। लोगों को अनिल भाई अगले साल जून महीने में, अगले साल जून महीने में पता चलेगा कि एप्पल का ईपीएस 19 आया। आपको अभी से पता है एप्पल का ईपीएस 19 आएगा। आएगा। यही डिफरेंस होता है एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति में और विदाउट रिसर्च में। बराबर है। यस सर। 19 रुपए के ईपीएस के हिसाब से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? 19 रुपीज के हिसाब से, राइट? ये सब फॉर्मूला यहाँ पे गड़बड़ है, तो अभी हम ये कोई हम्म। फॉर्मूला को नहीं देखते हैं। बराबर, इतना तो हम यस सर। एक्सपेक्ट करेंगे कि धमाकेदार तेजी बनती है। तो राइट सर। आपके चार्ट अब मैं अगर देखूं यहाँ पे, आपके चार्ट में देखूं तो आपको ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये शेयर आपके हाथ नहीं लगने वाला है। यानी जब जब आपको मौका मिले, जब बाजार गिरता है, तब आप ही की राइट। तरह कुछ लोग ईगल बन के बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी डायरी में नाम लिखा हुआ है कि ये कंपनियों के धंधे जबरदस्त बढ़े, ये कंपनियों के प्रॉफिट बढ़े, तो मेरे को इन कंपनियों को खराबी में लेना है। यस इसी सर। वजह से ये कंपनियां टूटती नहीं है। पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी अनिल भाई, जब जब अपॉर्चुनिटी मिले थोड़ा थोड़ा लेते जाओ। अच्छा। बराबर है। हाँ जी। आप बोलोगे मैं इसको 1000 रुपये लूंगा, नहीं मिल सकता है मौका हमें, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है, राइट? हाँ जी। इतना डिफरेंस होता है। जिनके धंधे बढ़ते हैं उनके पीछे हमें पड़ना पड़ता है, और जिनके हाँ जी। धंधे बढ़ते ही नहीं है, वो कंपनियों कितनी इकट्ठा करते जाओ वो नहीं बढ़ेगी, यस राइट? सर। तो एप्पल में समझ जाने का, लिख देने का नोट में, एग्रेसिव बाइंग चाहिए यहाँ पे, तभी बढ़ेगा। यस सर। राइट सर? यस सर। यस सर। चलो नो प्रॉब्लम, मैंने वो तो लिए। नेक्स्ट वीक हम लोग सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वीक हाँ जी। सर आपका आएगा वेन टू बाय। बराबर। अच्छा, वैसे मैंने परचेज तो किया और हुआ है कोई सर क्वेरी इसका। इस पूरे चैप्टर में? एप्पल मैंने परचेज किया ओके, हुआ है सर, और परचेज भी किया हुआ है मैंने 1100 के राइट, लेवल पे। बहुत बढ़िया अनिल भाई। अब क्या करो, लोग क्या हाँ जी। करते हैं पता है, 1100 पे लेके 1500 पे बेच भी दिया। हाँ जी। लोग बोलेंगे अनिल भाई 3 गुना हो गया आपका पैसा, बेचो नहीं तो मर जाएंगे अपने। कभी हाँ नहीं जी। बेचना भाव देख के। राइट। इसको तिजोरी में राइट सर। बंद कर दिया। अब हमारा एक ही स्ट्रेटेजी है, हर गिरावट में हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, राइट? मैंने शीट में ये लिखा भी है सर, जो मेन शीट और है जहाँ पे आपका है वहाँ पे लिखा हुआ है बाय ऑन डिप्स। अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। यहाँ पे मेन मेन शीट जो है सर, टोटल अच्छा इंडस्ट्री का अच्छा जो अच्छा, शीट है। ओके, ये मेन आपने जो रिमार्क देना है वहां पे। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। तो एक ही अप इंडस्ट्री पे ट्रेंड काम में होया है, सर। मैं बाय एट डीप, ये चीज हमें समझ। राइट, मैं मैं कह रहा था कहिए सर, कहिए। हम लोग इस पे सारी पूरी इंडस्ट्री पे ही काम करेंगे। इसमें काफी अच्छा चीज मिल रहा है सीखने को। थोड़ा टाइम का इशू था, मैं सारा काम नहीं कर पाया, हम्म, मगर सेपरेटली सेपरेटली पूरा सारे सब इंडस्ट्री पे काम करेंगे इसमें, जैसे अशोक भाई बोल रहे थे। यस, 100% करना ही चाहिए, क्योंकि दूसरों का होमवर्क भी चेक करने का, आपको दूसरों के होमवर्क देखोगे उससे भी कई चीजें सीखने को मिलेगी। लेकिन हमें, अगर हम खुद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इतना नॉलेज बढ़ेगा ना अनिल भाई, कि आपको यस सर। ताज्जुब होगा कि जो अपग्रेडेशन ये कर सकता है वो दुनिया की और कोई ट्रेनिंग नहीं कर सकती है।
हम Yes, कितना sir. ही कोई जगह पे ट्रेनिंग लेंगे, हम लाखों रुपया खर्चेंगे, ये चीज सीखने को भी नहीं मिलेगी जो आपको सेल्फ प्रैक्टिस से मिलेगी। Yes, sir. बराबर ना? तो शांति से टाइम निकाल के धीमे धीमे एक ये और सब थोड़ा करते सा जाना। एक और बराबर? रिक्वेस्ट था सर। इसके अलावा कहिए। मैं कह रहा था सर, इसका ये जो हमारा कोर्स लगभग जब कंप्लीट होने वाला होगा, सिचुएशन थोड़ी अच्छी होगी, तो सबको सर वडोदरा पे बुलाइए एक बार, वहां हाँ, पे हाँ। फेस टू फेस मीटिंग करेंगे। पक्का आप वडोदरा आइए, बराबर। गुजरात बहुत अच्छी घूमने की जगह है, सब लोगों को बुलाइए सर, पूरा ग्रुप एक बार और फेस हम टू भी फेस तो सब आएंगे देख आपके लेंगे। वहां पे, बराबर कि नहीं? यस सर। 100% एक रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं अनिल भाई, यस जनरली सर। हम लोग अब तक क्या करते थे, साल में एक बार पूरा इंडिया मिलता था। हम एक बार अहमदाबाद मिले, एक बार बॉम्बे मिले, तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट साल में एक बार हम इकट्ठा होते हैं, यस बराबर कि सर। नहीं? और मिलके यही चीजें डिस्कस करते तो अच्छा रहता है। इस साल हम लोगों ने तय किया था कि 4 अलग अलग जोन में मिलेंगे, क्योंकि जब इंडिया में मिलते हैं ना तो लोगों को थोड़ा खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। ज्यादा मतलब यस जब सर। बॉम्बे रखा तो सोचो कलकत्ता, बेंगलोर, दिल्ली वालों को बॉम्बे आना पड़ेगा, तो उनको फ्लाइट का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इस साल हमने सोचा था कि चारों जोन में हम एक बार मिलेंगे। जैसे आपको मेरे ख्याल से दिल्ली शायद नजदीक पड़ेगा, दिल्ली बेस्ट तो दिल्ली बेस्ट है सर। मिलेंगे अपने, बराबर कि ओके नहीं? ओके सर। मिलेंगे मिलेंगे, वो तो सब करेंगे। अभी भी कोर्स में थैंक यू। बहुत चीजें बाकी है, तो अभी खत्म नहीं हाँ हुआ सर, है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो सर आपको यस। आपको परमानेंट और इसके परमानेंट अलावा गुरु भी sector- हाँ, परमानेंट मार्केट गुरु बना दिया है सर आपको, अब आपके साथ रहेंगे हमेशा। बराबर। मैं तो खाली ये आपको फिगर बताने वाला हूँ, बाकी परमानेंट आपका एक ही गुरु आपके साथ है। और वो मार्केट। अभी आपको पता चल जाना चाहिए कि वो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, हाँ जी, बराबर हाँ कि नहीं? जी। सेल्फ राइट सर। प्रैक्टिस से बड़ा कोई गुरु नहीं। वो इतना सिखाएगा ना आपको कि जो यस कमाल सर। करेगा। मेरे को, मैं अभी आपको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आने वाला है आने वाले 2 साल में। थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है यस कि सर। आप तुरंत ये सब एक्सरसाइज करोगे, थोड़ा समय लगेगा, और ये आपको बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाएगा। हाँ जी। और कोई सेक्टर है अनिल भाई इसके अलावा जिसमें आपने नहीं कुछ सर, भी मैंने काम किया बताया हो? ना, ये आज ही मैंने एक ही सेक्टर पे काम किया है, मैं पूरे सेक्टर पे काम करके शीट पे अपलोड बराबर करूंगा, बराबर। थोड़ा टाइम लगेगा। एक्चुअली राइट मेरे राइट, कोई फैमिली में कोई कोई दिक्कत नहीं। एक तो एक्सपायर हो गया था, और दूसरा मेरे को फिर ऑफिस के काम से कहीं बाहर जाना पड़ा, तो 2 बार ऐसा हुआ, तो मैं पूरा मिस कर गया। अच्छा, बराबर बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी हमारा चार्ट तो हमने खाली ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ही सिखाया है, अभी बहुत सी चीजें बाकी है। तो वो यस सर। चीजें भी जब कंबाइन होगी तो और क्लियरिटी होगी। तो वो मीटिंग में नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे तो यस सर। और अपग्रेडेशन हो जाएगा इस नॉलेज में। तो आज की मीटिंग तो राइट। देखो नहीं रखते तो भी चलता, क्यों हाँ जी, रखिए नहीं कि चलो अच्छा किया सर। एक टेंशन हो कि अरे बाप रे हम्म। होमवर्क करना बाकी है, चलो थोड़ा कर लेते हैं, तो थोड़ी तो हाँ जी, गाड़ी हाँ जी। आगे चले, बराबर ना? हाँ जी सर, राइट सर। ओके ओके। तो थैंक यू। धन्यवाद अनिल भाई आपका भी। थैंक यू सर। और थैंक यू। कोई भी व्यक्ति को आपके जितने भी सेक्टर है उसमें कोई भी चीज पे चर्चा करनी हो, प्रोवाइडेड चार्ट उसके अंदर होना चाहिए, तो हम उस चीज पे बात कर सकते हैं। जो लेवल मार्क एनीबॉडी, किए सर मैंने चार्ट में, क्या वो ठीक है? एकदम परफेक्ट था अनिल भाई, एकदम ओके सर, परफेक्ट थैंक था। यू। थैंक यू। राइट, एक चीज याद रखे आप हो, अशोक भाई हो, आप लोगों ने नई कंपनी ली हुई है, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री वाली, आपको पूरा चार्ट नहीं मिलेगा। अब यस सोचो सर। अभी एक नया कंपनी आया कैम्स, हाँ जी। कैम्स है, रूट मोबाइल है, उसका चार्ट कहाँ से लाएंगे? नहीं आएगा। राइट सर। पर आपके माइंड में चार्ट आ जाना चाहिए कि ये कंपनी का धंधा ओके। 20% से बढ़ने ही वाला है, प्रॉफिट 20% से बढ़ने ही वाला है। अब इसका बिहेवियर कैसा होगा? जो चार्ट तो भले नहीं है, माइंड में चार्ट इसका ड्रॉ हो जाना चाहिए कि इसको तो रैली तो, करना तो है एक कि नहीं? जैसा इसमें हमारी जो ये शीट है, इसमें कैसे वो ऐड होगा सर? आपकी शीट में कैसे ऐड होगा? हाँ, जैसे मतलब ये जो मेन हमारी एफल शीट है ऐड जो होगा। आपने, क्योंकि अभी तो उसपे रिजल्ट वगैरह तो कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर के लिए हम लोग कैसे अपडेट रहेंगे? काम राइट, करना आपको क्या पड़ेगा। करना पड़ेगा, रूट मोबाइल लो, और रूट मोबाइल को आप एफल वाले सेक्टर में पहले तो डाल दो, राइट सर। बराबर है? थोड़ा थोड़ा धंधा दोनों का एक जैसा ही है। अब राइट सर। एफल के साथ ही इसी के सारे धंधे लिखो, इसके मार्जिन देखो, और एफल के मार्जिन अच्छे है कि रूट मोबाइल के अच्छे है, बराबर? अच्छा, दोनों के तो वही धंधे रेड ग्रोइंग है। रेड हेरिंग
रेड हेरिंग और प्रोस्पेक्ट से और कहाँ से निकालने पड़ेंगे यस उसके रेट? हाँ 100% वहीं से निकालने पड़ेंगे आपको। देखो रूट ओके मोबाइल ओके जब मैंने देखा, मैंने जैसे माइंड का भी आईपीओ के रेड हेडिंग प्रोस्पेक्टस मैंने पढ़ा। ये कौन सा क्या राइट। नाम था मैं भूल गया, माइंड हैप्पी की हैप्पी माइंड, हैप्पी माइंड अच्छा, है ना। हैप्पी माइंड, अब हैप्पी हैप्पी माइंड। माइंड, यस हैप्पी माइंड का प्रमोटर हम देखें तो बहुत अच्छे है, मतलब उन्होंने एक स्टार्टअप बनाई थी हैप्पी माइंड और आज हाँ जी। जबरदस्त ग्रोथ किया। पर ये ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि आईटी कंसल्टिंग की इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री को तो हाँ पढ़ना ही है। अब मेरे पास हाँ तो जी। ऑलरेडी टीसीएस है, एलटीआई है, तो मेरे को जरूर नहीं है कोई नई कंपनी लेके, बराबर कि यस नहीं। सर। तो उसी प्रकार से बहुत से इन्वेस्टर होंगे जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस सेक्टर में, तो वो नया निवेश नहीं करेंगे हैप्पी माइंड में, हम्म। बराबर। लेकिन रूट मोबाइल जो आया ये एक नया सेक्टर है, यस सर। इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट दिख सकता है, लंबे समय तक लोग रह सकते हैं। प्रमोटर के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इनके दूसरे धंधे नहीं है कोई भी, लेकिन हम्म। ग्रोइंग है, राइट। मगर ये अब तो, एक ये दूसरी जो आईपीओ मिस्टर की मैं बात अशोक, बताता हूँ। हाँ ये जो कौन सा? आपका हैप्पी माइंड वाला था, इसके तो जो है प्रमोटर मिस्टर अशोक करके कोई है ना सर? हाँ हाँ, हाँ तो ये वो माइंड ट्री इन्फोसिस, वाले जिन्होंने माइंड ट्री बनाई थी। इन्फोसिस में भी रहे हैं ये पहले। हाँ हाँ, अच्छा अनुभव है और ये कंपनी को बड़ा बना सकते हैं, उसमें कोई हाँ जी। डाउट नहीं है। अच्छा। बड़ा पैसा तो एक। बनने ही वाला है। अब लेकिन मैं क्यों, मेरा टीसीएस में भी बनने वाला है। अब मान लो कि हम्म कल धंधे में कोई खराबी आती है, आईटी कंसल्टिंग 3 साल के लिए मंदी में चला जाता है, तो हम्म कौन सी कंपनी को इफेक्ट पड़ेगी? टीसीएस को हम्म भी पड़ेगी, हैप्पी माइंड को भी पड़ेगी, पर ज्यादा हम्म। इफेक्ट हैप्पी माइंड को पड़ेगी। यस सर, नया कंपनी है। बराबर, राजा तो उस समय भी राजा रहेगा। हाँ जी। हाँ, नया भी है और मार्जिन उसकी टीसीएस जैसे थोड़ी है, अच्छा, एक चीज और मैं थोड़ा बराबर। सा ऐड करना चाह रहा था सर। हाँ हम लोगों ने ऊपर हाँ हाँ, जितना भी काम किया है, जितनी भी शीटें बनाई हैं, वो जैसे आपके राइट पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि सारी चीजें आप एक कंपैरेटिवली शीट जो आपने काम किया हो, जैसे उसका कंपैरिजन हाँ करने के लिए उसके साथ हम लोग कोई पैरामीटर भी तो होना चाहिए ना, चेक करने के लिए कि हम अपनी शीट को करेक्ट कर सके, जिससे कि हमें आने वाले जो टाइम है हमारी शीट एकदम ओके रहे, क्योंकि अभी हमारे को हम्म, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि 100% ठीक है ये। तो एक तो ये बात है, बराबर है। दूसरा ये है कि हम अपने जो डाटा है उसको किस तरह से मतलब कैसे सेट रखें कि हमेशा हमें हमें दिखे बाद में, क्योंकि हम लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, आपको तो 15-20 साल का प्रैक्टिस है, तो हमें थोड़ा सा ये लगे बराबर कि है। हमारे डाटा वगैरह एकदम परफेक्ट हैं और सही तरह से प्लेस हो रखे हैं। उस पे थोड़ा सा आपको थोड़ा लाइट राइट, डालना पड़ेगा इसके सर। लिए क्या है अनिल भाई, थोड़ा बेस पक्का कर देना पड़ेगा। बेस पक्का मतलब अभी जो आप कर रहे हो ना, ये डेटा जो यस। बना रहे हो, ये आप एक यस बेस सर। बना रहे हो। अब यस यही सर। जो डेटा बनेंगे इसको आप खाली कल इंप्रूव करने वाले हो, बराबर है? अब जो पुराने आपने डेटा हमने ले पहला जो रखे हैं क्वेरी वो बताया ना, एक्चुअल में फर्स्ट थिंग, सही है कि नहीं है, उसको हाँ चेक करने के लिए। हाँ, वो मैं उसी पे आ रहा हूँ कि पहली जो क्वेरी आपने पूछी कि डेटा बराबर है कि नहीं है, तो वो चीज यस आपको सर। अभी इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अभी नया नया काम चालू किया है, राइट। यस सर। हो सकता है कुछ जगह पे गलतियां भी हो सकता है। एग्जैक्ट। आप क्या करोगे, जैसे ही आपका डेटा पूरा हो जाता है ना, अब वो डेटा यस सर। को चेक करने के लिए भेजना और हमारे साथ थोड़ा उसको टैली कर देना, हम उसको चेक भी करेंगे और उसको यस सर। प्रॉपर बताएंगे। कोई जगह गलतियां होगी तो भी आपको बताएंगे, बराबर ना। ओके ओके इसको ओके सर। कंप्लीट मैनेज कैसे रखेंगे, धीमे धीमे आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जाने दो यार, वो सब सेक्टर देखने ही नहीं है। फोकस्ड अच्छा। माइंड हो जाएगा आपका, आप खाली ओके। ऊंची जगह पे फोकस करके देखोगे, ओके सर। बराबर ना। राइट राइट। अभी आज जैसे यूटीआई के आईपीओ की चर्चा चल रही थी, यस सर। बराबर, कि एक नई कंपनी आई। अब ऐसे तो कंपनियां हजारों आने वाली है, तो हम किस यस किस सर। के पीछे भागेंगे? अब यूटीआई यानी नाम कैसा है, यूटीआई का कैसा होना चाहिए वैसे? मेरे को कोई ज्यादा कोई इंटरेस्ट बेकार नहीं की था सर अच्छी इसमें। कंपनी होगी यूटीआई, मेरे नहीं को कर तो रहा है कोई कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। इंटरेस्ट। यूटीआई देखो कंपनी अच्छा है, हाँ। हाँ। ये जो सेक्टर मगर। है हाँ अनिल जी। भाई, ये मैं आप सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सारे लोगों से कि एक डेटा मैं आपको बताता हूं कि जो एयूएम है ये 18% से बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी। राइट। तो अगर एयूएम 18% से बढ़ते हैं तो एएमसी कंपनियों को चार्ज
AUM से ही मिलता है। जितने AUM बढ़ेंगे उतने AMC कंपनियों को चार्ज काट सकेंगे, जितने वो यस सर। चार्ज काट सकेंगे उतने उनके धंधे बढ़ेंगे। तो अगर यस सर। 18% से AUM बढ़ता है तो मुझे बताओ ये इंडस्ट्री ग्रोइंग हुई, स्टैग्नेंट हुई कि डीग्रोथ वाली इंडस्ट्री हुई? कौन सी हुई कंपनी है तो ग्रोइंग इंडस्ट्री? ग्रोइंग ग्रोइंग हुई सर कंपनी तो। हाँ, ग्रोइंग, एवरेज की डीग्रोथ वाली इंडस्ट्री? नहीं, कंपनी तो AMC ग्रोइंग इंडस्ट्री होगी सर। ग्रोइंग हुई क्योंकि यस धंधा बढ़ रहा है। अब यस अगर सर। धंधा बढ़ रहा है तो उसमें ज्यादातर कंपनियों के धंधे तो बढ़ते ही होंगे, है कि नहीं? यस सर। लेकिन जो एक्सरसाइज आपने ये सब की ना, आपको एक हकीकत पता चल गई कि ये तो बातें है कि सबके धंधे बढ़ेंगे, बाकी सब कंपनी की ताकत नहीं होती है धंधा बढ़ाने की। हाँ इसमें जी। कुछ ही कंपनियां होती है 4-5 जो जबरदस्त धंधा बढ़ाती है, इसका फायदा उठाती है। तो हाँ, वैसा ही तो आपके AMC में हो रहा है। जैसे आपने बोला था सर कि लीडर के साथ रहना है, तो AMC फिर हमारे धंधा पास भले 18% से बढ़े। HDFC AMC है हमारे पास। करेक्ट, तो भी उनका धंधा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन UTI का धंधा अनिल भाई 3 साल से घट रहा है। सोचो, अच्छा। AUM बढ़ रहा है इंडस्ट्री का, पर UTI का धंधा बढ़ रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। चलो प्रॉफिट ओ- घटेगा तो हम चला लेंगे, पर धंधा ओके। बढ़ेगा घटेगा तो कैसे चलाएंगे? अब वो बहुत भी मुश्किल। ग्रोइंग इंडस्ट्री में तुम्हारा धंधा घट रहा है यस सर। यस तो सर। फिर बिल्कुल बेकार, राइट? यस सर। यस सर। धंधा घट रहा है, प्रॉफिट घट रहा है 3 साल से, तो फिर हमें ये IPO भरना ही नहीं चाहिए, सीधी बात है। इससे तो बेहतर हाँ। है कि हम HDFC में ही रहे, वही सबसे बढ़िया है। तो ये सब यस चीजें सर। धीमे धीमे आपको पता चलेगी, बराबर ना? यस सर। जैसे जैसे हम और राइट। एक्सरसाइज करेंगे, राइट सर। बराबर? राइट सर। आपके दिमाग में इनके चार्ट भी बैठ जाने चाहिए। अगर हाँ HDFC सर। AMC का चार्ट आप अपने माइंड में ड्रॉ करो तो अब ट्रेंड आपके माइंड में होनी चाहिए। आप अगर राइट सर। रिलायंस का चार्ट, रिलायंस निप्पॉन की बात कर रहा हूं, चार्ट ड्रॉ करो तो रेंज बाउंड होना चाहिए। उसी हाँ प्रकार जी। से UTI रेंज बाउंड होना चाहिए, राइट? हाँ जी। करेंगे इन सब चीजों पे धीमे धीमे। राइट सर। बाकी और थैंक यू कोई सर। भी सेक्टर पे किसी को चर्चा करनी हो, वी हैव स्टिल 5 minutes, वी कैन गो विथ योर एनी सेक्टर wherever you are facing any challenges. ये हेलो। मेजगुन का IPO कैसा है सर? कौन सा IPO? मेजगुन डॉक ये शिपिंग वाला। मजगांव शिपिंग वाला मजगांव। बढ़िया है, मजगांव। बढ़िया बढ़िया है, अच्छी कंपनी सर है, लेकिन सारे सर डेटा देखने मेरे भी बाकी है। सर कोई उसका भी वो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री क्लाइंट सिर्फ ऐसा एक नहीं ही है है, कि एकदम गवर्नमेंट। जबरदस्त ग्रोथ में है, सर उसका क्लाइंट एक ही है, गवर्नमेंट ऑफ बराबर है, इंडिया, इसके अलावा तो कोई है नहीं। बराबर है। देखो, डिफेंस की कंपनी भी हुई, डिफेंस में भी इन लोगों का काम है। शिप ब्रेकिंग में अब आपके पास कोचिन शिपयार्ड भी है, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसका धंधा जबरदस्त बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसा ह्यूज वेल्थ क्रिएशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपको एफएल में होगा, जो रूट मोबाइल में होगा, जो कैम्प्स में होगा, बराबर कि नहीं? सर आप लिस्टिंग पैसे के कमाओगे, लिए आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड मिलेगा। हाँ, लिस्टिंग पिन मिलेगा क्या IPO में? लिस्टिंग में तो मिलेगा ही ना, इतना बड़ा IPO तो आपको लगने के चांसेस तो है ही, कोई डाउट नहीं। बराबर, लगते कौन से नहीं है, जो बहुत ही छोटी इक्विटी होती है वो नहीं लगती है जनरली। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट, आपने अभी जितना काम किया हुआ है, आपने फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को मिक्स किया। टेक्निकल में अभी आपने कुछ ही चैप्टर्स को मिक्स किया, अभी ओरिजिनल सीखना चार्ट में बाकी है, वो हम ये वीक सीखेंगे और आपके चार्ट की एक्सरसाइज को हम आगे बढ़ाएंगे, राइट? नेक्स्ट वीक का जो अगले मंगलवार को जो हम मिलेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप लोग चार्ट में और माहिर हो गए होंगे, बराबर है? तो चलिए, धन्यवाद आप सबका। कल हेलो। हमारा मीटिंग रहेगा जुलाई में। हेलो हाँ बोलो। यस सर, यस धवल। धवल भाई, यस बोलो धवल भाई, सर बोलो इस धवल भाई। 10-12 दिन से कुछ होमवर्क हो नहीं पाया है, वीडियो सब देखे पर असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया है। अच्छा अच्छा,
बिजी शेड्यूल रहा है, तो अब Okay. नेक्स्ट ट्यूसडे ओके उसको कंपनसेट करने के लिए अगर मतलब कुछ क्वेरीज वगैरह आए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी धवल भाई क्या है, देखो आज जो हमने मीटिंग रखा ना, तो आज ओके के मीटिंग में ऐसा नहीं था कि बहुत होमवर्क था, एक्चुअली नॉर्मल ही था। तो हम नहीं रखते तो भी चलता। हमने जो इसके जो अगली बैच की अप्रैल बैच, उसमें हमने, हाँ अभी तो शुरुआत हुई है, पर ये वीक हम अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। तो आपने लर्निंग किया कि नहीं, कि खाली होमवर्क नहीं हुआ, कि दोनों काम नहीं हुआ, वीडियो भी नहीं देख पाए, ऐसा है पिछले हफ्ते के? मतलब आपके वीडियोस तो सारे देख लिए, टेक्निकल के भी देख लिए सारे, पर उसका असाइनमेंट Okay. बाकी है सर। ओके, असाइनमेंट बाकी है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी क्या करो, अभी उसमें नेक्स्ट जो वीडियो मिलेंगे ना, वो वीडियो को ऐड करके असाइनमेंट बनाना, राइट? ओके ओके सर। और फिर भी कभी भी आप लोगों को लगता है, देखो हमें कोर्स को खत्म नहीं करना है, हमें हाँ, सर। क्या है, सीखना है। तो कभी भी आपको लगता है हम थोड़े फास्ट चल रहे, स्लो चल रहे, बता देने का। बीच में आप में से किसी ने कहा था कि हम बहुत स्लो थे, तो हमने थोड़ी पिकअप भी बढ़ाई थी। फास्ट लगे, बहुत ज्यादा वीडियो है तो थोड़ा कम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 वीक के बदले इसको 11 महीने भी लगेंगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर की ओके सर। ओके सर। देखिए, एक बार सीख लेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, पर हमेशा आप लोगों को साथ चलना है। तो स्पीड ज्यादा हो कम हो, मेरे को बोल देने का, बराबर ओके ओके सर। है ना? तो पीयूष ये जी। धवल भाई, बाकी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और पिकअप आ जाएगी, बढ़िया रहेगा एकदम। पीयूष जी। हाँ कहिए। यस पार्था जी, यस प्लीज। सर एक चीज बताना है, जैसा अनिल जी बोला है ना, यस कहिए। मेरा आवाज सुनाई पड़ रहा है हाँ आपको? जैसा अनिल जी बोला है ना, क्लियर है पार्था जी आपका आवाज। हाँ जैसे अनिल पॉल जी बोला है, जैसे मेरा मन भी एक योजना है। आप एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट एक बनाएंगे तो ओके। अच्छा लगता है। क्या बनाए? एक फॉर्मेट के लिए एक टेम्पलेट। हाँ अच्छा ओके। तो क्या होता है, हर आदमी अपना अपना योजना से बना रहे एक्सेल शीट। अभी जो टॉप बराबर। हेडिंग है ना, टॉप हेडिंग वगैरह आप एक टेम्पलेट बनाएगा तो उसी हिसाब से हम लोग वो इंफॉर्मेशन हम लोग बराबर भर्ती करें। बराबर है। पर मैं क्या चाहता हूँ पता है पार्था जी, कि बोलिए। आप कोई टेम्पलेट के हिसाब से ना चले और अपनी क्रिएटिविटी ऐड करें। देखो एक मैंने सिंपल सा टेम्पलेट दिया हुआ है, बराबर की नहीं, पर अगर उस अपनी क्रिएटिविटी जब ऐड करते हो, जब आपके अलग अलग लोगों के होमवर्क देखो, कितनी चीजें लोगों में से कितनी नई नई चीजें बाहर आती है। तो मेरा जो टेम्पलेट है, मैं ऐसे अभी आप लोगों को जो मैंने दिया हुआ, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, राइट? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है। जैसे आप अभी आपके पास कौन सा टेम्पलेट है, एक तो आपका ग्रोइंग इंडस्ट्री वाला, एक आपका इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, राइट ना? ये टेम्पलेट हुआ। आपने इंट्रिंसिक वैल्यू में क्वार्टरली रिजल्ट ऐड किए, आपने अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न डाला, आपने मेजर कॉस्ट डाला, तो ये सब चीज मिलके एक टेम्पलेट बनता है। पर फिर भी मैं चाहूंगा कि आप मेरे टेम्पलेट को, जो मैं स्टेप मारता हूं, उसको मत देखो। आप उसमें अपनी चीजों को ऐड करो, अपनी क्रिएटिविटी ऐड करो, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं करना है कि जो मैंने सिखाया वहीं पे एकदम बंद हो जाए। हमें हमेशा स्काई इज द लिमिट रखना है, राइट? हम 30 लोग हैं, 30 लोगों का दिमाग जब कोई भी स्प्रेडशीट पे आता है तो और ज्यादा हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा हूँ पार्था साहब के साथ रहे। हम टेम्पलेट की बात नहीं कर रहे, हम डाटा करेक्शन और चेक करने की बात कर रहे हैं, दैट्स ऑल। टेम्पलेट तो डिफरेंट थिंग हो डाटा गई। करेक्ट तो होने ही वाला है अनिल भाई, उसकी चिंता मत बस करो। डाटा बस करेक्शन तो उसी कई का बार है, अभी जैसे उसी का है कि बोला। हमने जो बनाया है वो जो हमारा ग्रोथ आ रहा है या जो हम लोगों ने उसका आईसीआर वगैरह निकाला है, आपने जो बना रखा है उस टेम्पलेट उस शीट से हम लोग सही कर लेंगे, बस इतना काम तो हम पहले करेंगे। मगर जैसे अब जैसे कोर्स पूरा हो गया हमारा ये सब सेटिंग वाला, तो आप इसके ऊपर के जितनी भी शीटें बनाई हैं उसका एक परफेक्ट वो हमारे को मिले, जिससे कि हम अपनी चीजों को अपडेट कर लें और ठीक कर लें। हाँ मेरा 100%। राइट सर, थैंक यू। मेरा शब्द गलत हो सकता है। हेलो हेलो, मेरा शब्द गलत हो सकता है। मेरा क्या है, वो एक स्टैंडर्ड जैसा है। हम लोग पूरा होने के बाद, कोर्स होने के बाद
मेरा जो डाटा है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम मेरा गूगल ड्राइव में रखना है चाहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी हम आई कैन रेफर माय शीट विथ सम स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्ट। इस चीज को हम आखिरी वीक में तो वैसे तो करते ही है पार्था जी, जब आपका लास्ट वीक होता है तब पद याद है हम लोग क्या करते हैं, पूरे के पूरा सारी ग्रोइंग इंडस्ट्री का फॉर्मेट बना देते हैं, वैल्यूएशंस बनाते हैं, आप लोग लिखते हो कि भाई ग्रोइंग इंडस्ट्री की आपने शीट पूरी बना दी। लास्ट वीक आपने ये बताया कि ये कंपनी में खरीदने वाला हूँ। राइट सही है। वो तो आपका आखिरी वीक वैसे भी बनेगा, लेकिन उसके अलावा भी मैं ये चाहूंगा कि जो भी चीज आप बनाओ ना उसको ग्रुप में छोड़ते जाओ। ग्रुप में छोड़ने का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज को जब ग्रुप में डालते हो ना तो जरूरी नहीं है कि मैं तुरंत चेक करता हूँ, लेकिन मैं लाइन टू लाइन जरूर चलता हूँ। आपने जो चीज ग्रुप में डाली होगी उसको मैं 100% चेक करूंगा। और आपने जो डेटा भेजा है ग्रुप में, मान लीजिए कि आपने ग्रुप में आज डाला कि ये टीम लिस्ट का डेटा है, यहाँ पे बाइंग यहाँ पे सेलिंग, तो मैं वो जरूर चेक करूंगा और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट होते हैं मैं इंप्रूव करके वो शीट वापस ग्रुप में डालता हूँ। शायद आप लोगों ने पहले के किसी भी स्टूडेंट का ये चीज देखी हो तो आपने देखा होगा कि लोगों ने एक एक्सेल शीट डाली है, मैंने उसको रिवाइज करके डाली, राइट, क्योंकि मुझे पता है कुछ प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन मैं जब भी उसको रिपोस्ट करूंगा तो मैं उसको हमेशा परफेक्ट करके रिपोस्ट करूंगा, राइट। तो ये अनिल भाई ये एक हैबिट रखने की, कभी भी कुछ प्रेजेंट कभी भी कुछ बनाओ ना तो उसको ग्रुप में छोड़ दिया करो कि ये चीज मैंने किया हुआ है, तो उसको हम लोग कनेक्ट करके रखेंगे, बराबर ना। जो पुराने स्टूडेंट है ना वो लोग ये चीज करते हैं, नए रिजल्ट आते हैं वो लोग रिजल्ट को डालते हैं ग्रुप में, वो लोग पूरे के पूरे वैल्यूएशंस को डालते हैं, राइट। वो वैल्यूएशंस को मैं कभी भी ऐसा कभी नहीं हो, देखो अभी प्रीति मैडम ने भी बहुत अच्छा वो डेटा स्टडी करके भेजा था आईपीओ का, पर मैंने अभी भी उसको फॉरवर्ड नहीं किया है लोगों को। मैंने क्यों फॉरवर्ड नहीं किया है? क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। मैं क्या करूंगा, प्रीति मैडम के डेटा को चेक करूंगा, कुछ भी उसमें करेक्शन लगे करेक्ट करूंगा और फिर मैं आप लोगों को वो डेटा दूंगा, बराबर। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। एक चीज और पूछना था सर, ये जो मुनीर भाई ने जो डाला था वो जो उस शीट से हम लोग डाटा ले सकते हैं HTML वाले में, वो क्या है सर, वो उसमें कुछ है फायदा? हाँ वो क्या है कि अगर आप उसमें कोई भी कंपनी आपकी डालते हो तो आपको कम से कम 10 साल के डेटा मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो उसका थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन और क्लियर हो जाता तो सबको पता लग जाएगा। बराबर है। आज ही हमारा बात हुआ है मुनीर से, और मुनीर ने इसके अलावा भी बहुत अलग अलग डेटा पे काम किया है, राइट। तो एक एक करके वो प्रेजेंट करता जाएगा, बराबर। हमें खास ये जानना है, आप डायरेक्टली मुनीर की स्प्रेडशीट ले लोगे तो ऑटोमेटिक तो डेटा बन ही गया, चलो कि 10 साल के डेटा तो आपके सामने आ गए, पर इससे बेहतर ये होगा कि सीख ले कि मुनीर ने हम अपना डाटा बनाएंगे सर, डाटा हम अपना ही क्रिएट करेंगे, मगर हम सिर्फ उसको सर्टिफाई करने के लिए कि जो हमने काम किया है वो कहीं पे करेक्शन है तो हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना हमारे को, बराबर, क्योंकि हमने किसी को कॉपी नहीं करना था, फिर तो सीख ही नहीं पाएंगे। बराबर है, 100%। अनिल भाई करेक्शन की चिंता मत करो, करेक्ट तो मैं करने ही वाला हूँ, बराबर कि नहीं। करेक्शन तो आपकी जो भी स्प्रेडशीट आप डालते जाओगे ना वो हम करेक्ट करते जाएंगे, और उससे ज्यादा करेक्शन आपका कब होगा पता है? जब आप खुद प्रेजेंटेशन मोड पे आ जाओगे। प्रेजेंटेशन मोड मतलब अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत से स्टूडेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। यस सर, देखा आपने, जैसे कल भी कुछ स्टूडेंट ने प्रेजेंट किया था। तो हमेशा ऐसे जो प्रेजेंटेशन, ये हम लोग एक्सरसाइज देते हैं आप लोगों को सीखने के बाद कि चलो अभी एक्सरसाइज करो, वो एक्सरसाइज करो, तो एक्सरसाइज में पार्ट लेने से ज्यादा सीखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो आपका सीख लेने के बाद भी ये अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो ये अपॉर्चुनिटीज का लाभ लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया डेटा इकट्ठा होगा। देखो अभी स्टूडेंट्स ने काम किया हुआ है, वो मैं आपको बता दूं, बहुत बढ़िया काम किया है सारे स्टूडेंट ने। उनके पास Q1 में कौन से सेक्टर का ग्रोथ कैसा है वो सब स्टूडेंट को पता है, किसके ग्रोथ टूटे हैं, किसके ग्रोथ चले हैं वो उनको पता है। इंडिया की सारी इंडस्ट्रीज उनकी स्प्रेडशीट में आ गई, पर ये सब कब हुआ? जब उन्होंने ये एक्सरसाइज में पार्ट लिया। तो ऐसे ही जो जो एक्सरसाइज आती है पार्ट लेता जाने का,
बराबर ना, वो ये सब हमारे को 1.5 से 2 कैसे साल की देखने को प्रोसेस है मिलेगा अनिल सर? भाई। अब वो मैं जो बताऊंगा स्प्रेडशीट ना, डाला? आपके ग्रुप में डालूंगा। ओके हाँ, ओके, थैंक यू सर। कोई राइट सर, स्प्रेडशीट हम आइए ग्रुप में शेयर करेंगे जो इन्होंने बनाई ओके, है वो, पर पूरा इनका आप चेक करेंगे प्रेजेंटेशन सर। खत्म हो जाए ना फिर। हाँ हाँ, यस यस। राइट। सर मैंने अभी वो सीट शेयर की है आपके प्रॉफिट फॉर इट की मेल आईडी में, यस ओके। मेल में तो आप किया हुआ है कि ग्रुप में किया हुआ है? नहीं मतलब मुझे अशोक, फिर नहीं ग्रुप में कर दो ना, सर मुझे मालूम, व्हाट्सएप के ग्रुप मुझे में। नहीं आता था कि कैसे ग्रुप में शेयर करूं, वो मुझे नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको मेल अच्छा आईडी कोई डाला बात नहीं, देखो ग्रुप। खाली कंट्रोल से कंट्रोल भी कॉपी कर लेने की कॉपी लिंक और ग्रुप में डाल देने की, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाँ मैंने आपको डाला, बराबर आप है? शेयर कर सकते हो, हम्म, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कैसे शेयर हाँ करना हाँ, है, इसीलिए मैंने आपको मेल आईडी में शेयर किया, तो आप शेयर देख राइट राइट, लीजिए। ठीक है सर, ओके, और पक्का कोई पक्का, कुछ आपको सजेशन 100%। लगे तो मुझे कीजिए राइट सर, राइट, कोई। पक्का पक्का, थैंक यू सर। डन डन, नो प्रॉब्लम। बराबर है। तो हाँ चलिए थैंक यू आगे सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीक के लर्निंग पे। और ये वीक हम लोग बाइंग लेवल सीखने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, एक टारगेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि शेयर कितना चलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाइंग लेवल, राइट, आपने इंट्रिंसिक वैल्यू से तो जाना कि शेयर कौन से भाव पे सस्ता है, शेयर कौन से भाव पे महंगा है, पर चार्ट से भी हम लोग यही आंसर लेंगे। सो नेक्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर एंड एक बेस्ट चीज ऑफ और लक टू पूछना चाह रहा एवरीवन। था, एक्सक्यूज मी सर। आप पूछ लीजिए, पूछिए अनिल भाई। हाँ जी, मैं ये कह रहा था पूछिए। सर, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग इनएक्टिव हैं, तो उनका क्या पर्सनल, हम्म, जैसे विनोद भाई जी का तो छोड़ दीजिए, उनका तो हेल्थ का इशू है, बाकी बहुत सारे लोग इनएक्टिव हैं। बराबर। तो हमारे ग्रुप में उस तरह से जो हाँ आउटपुट निकलना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है सर। जैसे मैं दूसरे ग्रुप का देखता हूँ, उनका बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, हाँ हाँ, तो इसीलिए बराबर। पूछ रहा अनिल है भाई सर, सब कुछ जगह ऐसा ही होता है। कुछ कुछ कांटेक्ट है सर मैं कि क्यों कितने नहीं टाइम कर से रहे ये मैं, लोग काम? नहीं नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं अनिल भाई। इसमें क्या है, देखो मैं तो कितने सालों से सिखा रहा हूँ, पर कभी हाँ क्या सर। होता है कि कोई एक समय होता है। जैसे अभी मैं खुद भी एक चीज सीख रहा हूँ, मैं खुद अभी लर्निंग यस सर। मोड पे हूँ, राइट। हाँ जी। अब मैं जो वहां पे सीख रहा हूँ, मैं इतना एक्टिव ही नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी दूसरे कमिटमेंट में बिजी हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहां पे सीखूंगा नहीं, मैं हाँ टाइम जी। निकाल के थोड़ा थोड़ा सीखना चाहता हूँ, राइट। राइट सर। मेरा ये अनुभव है कि पिछले जितने भी हमारे सब वर्कशॉप्स हुए हैं, कुछ लोग तुरंत बहुत अच्छा करते हैं और कुछ लोग थोड़ी लेट पिकअप लेते हैं, पर यस आखिर सर। में सब लोग बढ़ते तो साथ में ही हैं। और सब ग्रुप ओके। में 80-20 का रेशियो होता है। आपके ये ग्रुप में भी बहुत से लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जो लोग के होमवर्क नहीं हो पा रहे, उनसे भी कोई ऐसी गला गिला शिकवा कुछ भी नहीं है। अगर वो करेंगे तो इट्स गुड, हाँ नहीं जी। करेंगे तो मैं आशा रखूंगा भविष्य में करें, ओके। बराबर की नहीं। पर राइट फिर सर, भी राइट। सबके लिए अपना बेस्ट ऑफ लक है। और आखिर में ये सारे चीजों पे हमें तो होमवर्क करना ही यस सर। है। इंडिविजुअली मुझे खुद को हर काम सेक्टर पे एक बार काम करना है, राइट सब पे करना है, सब पे करेंगे। राइट। और आउटपुट तो बढ़िया ही आएगा, 100%, उसका कोई दो राय नहीं है, बराबर। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।